शाम 4:30 बजे कशर खबरनामे हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील। सुप्रीम कोर्ट तरफ ये दफा 370 हवाले फैसला महफूज थवन आमुत तज आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सज सरबराही मज 5 जजन पे मुश्तमिल बेंचन अमे हवाले फैसले बोजन आमुत यथ दौरान मामलस हवाले बहस मुबाहिस कन तमाम नुक्तन पे रोशनी त्रावान मरकजी सरकार जम्मू कशीर हुंद रियासती दर्ज बहाल करनस तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया असम्बली इंतखाब सितंबर 2024 ब्रो अमल मज अन्निक हिदायत दिन आय। The continuous exercise of power under Article 370, Clause 1 by the President indicates that the gradual process of constitutional integration was ongoing. The declaration issued by the President under Article 370, Clause 3 is a culmination of the process of integration and as such is a valid exercise of power. Thus, CO 273 is valid. K. The Constitution of India is a complete code for constitutional governance. Following the application of the Constitution of India in its entirety to the state of Jammu and Kashmir by CO 273, the Constitution of the state of Jammu and Kashmir is inoperative and is declared to have become redundant. L. The views of the legislature of the state under the first proviso to Article 3 are recommendatory. Thus, Parliament's exercise of power under the first proviso to Article 3 under the proclamation was valid and not mala-fide. M. The Solicitor General stated that the statehood of Jammu and Kashmir will be restored except for the carving out of the Union Territory of Ladakh. In view of the statement, we do not find it necessary to determine whether the reorganization of the state of Jammu and Kashmir into two Union Territories of Ladakh and Jammu and Kashmir is permissible under Article 3. However, we uphold the validity of the decision to carve out the Union Territory of Ladakh in view of Article 3A, read with Explanation 1, which permits forming a Union Territory by separation of a territory from any state. And we direct that steps shall be taken by the Election Commission of India to conduct elections to the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir, constituted under Section 14 of the Reorganization Act by 30 September 2024. Restoration of statehood shall take place at the earliest and as soon as possible. It is worth noting that even the partition of India in 1947 did not impair Jammu and Kashmir communal and social harmony. In this context, Mahatma Gandhi is famously quoted to have said that Kashmir was a ray of hope for humanity. The first step toward this is to achieve a collective understanding of the human rights violations perpetuated both by state and non-state actors against the people of this region. There have been numerous reports documenting these incidents over the years. Yet, what is lacking is a commonly accepted narrative of what has happened, or in other words, a collective telling of the truth. Internationally, the right of victims of human rights violation and the truth is an end itself. It encompasses a structural investigation of the events and social political structures that led to the atrocity, the particular circumstances of individual suffering, and an authoritative reporting of the results of the investigation. Additionally, truth-telling provides an opportunity for victims to narrate their stories, which facilitates an acknowledgement from those responsible for perpetuating the wrongs and from the society as a whole. This paves the way for reconciliation. While there are different ways of achieving these objectives, Truth and Reconciliation Commissions have been particularly effective. सुप्रीम कोर्ट फैसले इन पत ये अमकिस दिफास मज कत करन वल सियासतदान मोयूस सपद तच महबूबा मुफ्ती पन्निस अकिस वीडियो पैगामस मज लूकन तो नौजवान वोनमुत ज तिम गचन न हिम्मत हारन बल्कि पज जुदजहद जारी थावन। मेरे प्यारे हमवतनों, हिम्मत मत हारो, उम्मीद मत छोड़ो। जम्मू कश्मीर ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ये एक पड़ाव है, मुश्किल ही सही पर पड़ाव है, ये मंजिल नहीं है हमारी। इसको मंजिल समझने की गलती मत करो। हमारे मुखालफिन चाहते हैं कि हम उम्मीद छोड़ के दिल बर्दाश्ता होके शिकस्त को तस्लीम करें, पर ऐसा नहीं होना है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 370 आर्जी है, इसलिए इसको हटाया गया। ये हमारी हार नहीं है, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया की हार है, हिंदुस्तान के तस्वुर की हार है। जिस तस्वुर के साथ, जिस आइडिया ऑफ इंडिया के साथ, जिस गांधी के हिंदुस्तान के साथ, जिस गंगा जमनी तहजीब के साथ जम्मू कश्मीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान को दरकिनार करके यहां के सिखों के साथ
یہاں کے بدھسٹ کے ساتھ، یہاں کے کرسچنز کے ساتھ، یہاں کے ہندو بھائیوں کے ساتھ، گاندھی کے ملک کے ساتھ ہاتھ ملایا. آج اس آئیڈیا آف انڈیا کی ہار ہے. آج جو حرکت مرکزی سرکار نے پارلیمنٹ کے اندر ناجائز، غیر قانونی، غیر آئینی کی، اس کو جو جائز قرار دیا گیا، وہ جموں کشمیر کے لیے ہی نہیں بلکہ آئیڈیا آف انڈیا، ہندوستان کے تصور کے لیے ایک سزائے موت کی خبر سے کم نہیں ہے. آپ جانتے ہیں 1947 میں ایک سرکار تھی، پارلیمنٹ تھا، اس کے بعد کانسٹیٹیوشن بنا، انہیں جموں کشمیر کے ساتھ وعدے کیے اور جموں کشمیر کو ایک خصوصی پوزیشن دی. اس کے بعد 77 سال کے بعد ایک دوسری جماعت آئی جنہوں نے پچھلے 77 سال سے ایک ہی رٹ لگائی تھی کہ ہم پاور میں آئیں گے اور 370 کو ختم کریں گے. انہوں نے کر دیا، مگر یہ ہماری ہار نہیں ہے، یہ اس ملک کی ہار ہے. دھوکہ انہوں نے کیا، ہم نے تو نہیں کیا. آج 370 کو عارضی کہتے ہوئے انہوں نے ملک کو کمزور کر دیا. انہوں نے جموں کشمیر میں ان طاقتوں کو مضبوط کیا جو بار بار کہتی تھی کہ جموں کشمیر کا ملک کے ساتھ الحاق عارضی ہے. تو آج 370 کو عارضی کہتے ہوئے آپ نے جموں کشمیر کا جو رشتہ ہے اس کو عارضی قرار دے کے اس کو توڑ دیا. جو ہاتھ آپ سے ملا تھا امیدوں کے ساتھ 1947 میں، آج آپ نے اس ہاتھ کو زخمی کر دیا. اس لیے ہمت مت ہارو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، یہ وقت بھی نہیں رہے گا. یپر نیشنل کانفرنس پارٹی ہند نائب صدر عمر عبداللہ پنہ مویوسی ہند اظہار شاعرانہ اندازس مز کرت وونمت یدوے آز ناکام سپد تاہم چھ نا امید سپدمت. تمو جموں کشیر ہندین لوکن مبارکباد پیش کران وونمت یت پویں وری 2019 پہ لوکو صبر توملس کام ہز تتھے پٲٹھۍ پزِ اسہِ برونٛہہ کُن تہِ صبر توملس سان جدوجہد جاری تھاوٕنۍ. یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم بے شک آج ہم ناکامیاب رہے، لیکن ہم نا امید نہیں ہیں، ہم مایوس نہیں ہیں. ضرور دل کو دھکا ضرور پہنچا ہے. آج ہم اپنی جگہ ہمیں افسوس لگ رہا ہے، لیکن ہماری یہ کوششیں جو ہیں یہ جاری رہیں گی. اور میں جموں کشمیر کے لوگوں کو مبارکباد دینا چاہوں گا اس بات کے لیے کہ انہوں نے 2019 کے بعد صبر سے کام لیا. انہوں نے حالات یا ماحول کو بگڑنے نہیں دیا، انہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. اور میں چاہوں گا کہ آگے بھی ہم اسی طرح کا جو ہے لائے عمل جو ہے وہ اختیار کریں، کیونکہ یہ لڑائی جو ہے یہ ایک دن کی لڑائی نہیں ہے، یہ ایک ہفتے کی لڑائی نہیں ہے، یہ ایک مہینے کی لڑائی نہیں ہے، شاید یہ ایک سال کی بھی لڑائی نہیں ہوگی. کب ہم اس لڑائی میں اپنے منزل تک پہنچیں گے کوئی کہہ نہیں سکے گا، لیکن منزل تک پہنچنے کے لیے ہم اپنی کوششیں جو ہیں وہ پوری طرح سے ہم جاری رکھیں گے. باقی جہاں تک سپریم کورٹ نے الیکشن کی بات کی ہو یا اسٹیٹ ہوڈ کی بات کی ہو یا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات کی ہو، میں اس پہ آج جاؤں گا نہیں، کیونکہ بڑا معاملہ ہمارے لیے الیکشن نہیں تھا. اسٹیٹ ہوڈ کچھ حد تک ہمارے لیے ایک ایشو ہے، لیکن 370 کے مقابلے میں بھی اسٹیٹ ہوڈ ہمارے لیے ایشو نہیں تھا. اور جہاں تک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات ہے اس پہ میں نے پہلے بھی بہت بات کی ہے، آگے بھی کروں گا، لیکن آج میں صرف 370 کے بارے میں اور آج کے فیصلے کے بارے میں اپنے خیالات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، اس امید کے ساتھ کہ آپ سمجھو گے کہ ہم اس فیصلے کی امید نہیں کر رہے تھے. ہم نے، جیسے میں نے آپ سے شروع میں کہا، ہم انصاف کی امید لے کے ہم نے عدالت کے دروازے کھٹکھٹائے تھے. چلیے اس بار نہ صحیح، اگلی بار. دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے. لمبی ہے غم کی شام، مگر لوگوں کو صرف
यपर मोहम्मद यूसुफ तैरगम अमे हवाले कत करान वोनमुत तिमन सठे अफसोस यह फैसले ब्रो कुन इन पत जम्मू कश्मीर तो लद्दाख कन लूकन मज मायूसी सपजम तिकाज लूकन सुप्रीम कोर्टस पे नजर सुप्रीम कोर्ट दी लूकन हिंदिस हकस मज पनुन फैसला। वर्डिक्ट मिला वो काफी डिस्टर्बिंग है और साथ ही साथ ये कहना कि जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है 370 की वजह से इसकी जो इंटरनल सिक्योरिटी या इंटरनल जो गारंटीज रही है, सॉवरेनिटी रही है, वो मौजूद नहीं थी, मुनासिब नहीं थी। यह हद दर्जा नाइंसाफी है। अगर आज भी हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जिस पर महाराजा हरि सिंह ने तब दस्तखत किए थे, उसके साथ ही एक और डॉक्यूमेंट भी उन्होंने सबमिट किया था, उसमें दर्ज है कि जम्मू कश्मीर की मखसूस सूरत हाल को देखते हुए इसके हुकूक, इसके आईनी जमानतें, इसमें सॉवरेनिटी है, उसमें एक मखसूस सिचुएशन की वजह से मखसूस सूरत हाल को देखते हुए कुछ जमानतें, मखसूस जमानतें मिलनी चाहिए। ये उस वक्त के महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत करने के बाद ही कहा भी था और लिखा भी था। आज अफसोस है कि उन सिफारिशों को भी मंजूर नहीं किया गया, लेकिन मुश्किलात का सामना करने का तरीका और सलीका भी हमें जमहूरी ढांचे ने दिया है आज तक, फ्रीडम मूवमेंट ने दिया है आज तक, और हम वचनबद्ध हैं अपने आवाम के हुकूक की खातिर मुसलसल जदोजहद जारी रखेंगे। अपर जम्मू मज कांग्रेस पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस साज कर आमुत यथ दौरान सुप्रीम कोर्ट के फैसलो खैर मकदम करान वन आव योदवे कांग्रेस पार्टी तरफ अमे हवाले कहिया एहतजाज तहन आई, ताहम आज सुप्रीम कोर्ट तरफ फैसले इन पत यह कत साफ सपजम कांग्रेस पार्टी हिंद मुतालबे जायज। जो फैसला हुआ, मैं ये कहूंगा कि पंडित नेहरू जी, पटेल साहब, हमारे जो दूसरे यूनियन मिनिस्टर्स थे उस वक्त, उनकी तरफ से जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वार टाइम में दिया गया था, तो मैं ये कहूंगा कि हम फख्र से कहते हैं कि 370 कांग्रेस की तरफ से दिया गया था और बीजेपी की एक लॉन्ग स्ट्रेटजी रही कि इसको हटाया जाए। अब जब वो हुकूमत में आए तो उन्होंने हटा दिया, लेकिन एक चीज का हमें दुख है, जो एक्सपेक्टेशन लोगों को थी कि हमारी लैंड जो है वो सेफ रहे और हमारे जॉब्स की प्रोटेक्शन का मिले, वो उसके लिए हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से आगे एक लंबी स्ट्रगल जो है लड़ते रहेंगे। तीसरा, जहां तक रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड का ताल्लुक है, हमारी पार्टी चाहती है और हमारी स्ट्रगल भी रहेगी कि असेंबली इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इलेक्शन से पहले इमीडिएटली पहले स्टेट को रेस्टोर करे, उसके बाद इलेक्शन में जाए, ये हमारी डिमांड है। आज यपर जम्मू मज भारतीय जनता पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस साज कर आमुत यथ दौरान सुप्रीम कोर्ट के फैसलो खैर मकदम करान वन आव सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दुनियाक बेहतरीन कोर्ट तो यह वजह लूकन हिंद मफाद तो जज्बात नजर तल थवित ये अहम फैसले ब्रोह कुन यवान। इस निर्णय का स्वागत करते हैं। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे देश की जो न्यायपालिका है, जो हमारे देश की जुडिशरी है, वो सर्वोपरि है। हर एक नागरिक देश का पूरी ईमानदारी के साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का एहतराम करता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है। हमारी अदालतें देश को न्याय देती हैं और एक न्याय देने वाला फैसला
जो जम्मू कश्मीर की 1,40,00,000 लोगों के लिए यह निर्णय हुआ है, यह निर्णय जनता के लिए है, गरीबों, मस्कीनों, ज़ईफों और बेसहारा लोगों को एक सहारा देने वाला है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के इस फैसले के बाद अब जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 को लेकर सियासत बंद होगी। यहां इस पर कटाक्ष और टीका टिप्पणी बंद होंगी और सब मिलजुल कर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब मिलजुल कर, एक होकर जम्मू कश्मीर के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, जम्मू कश्मीर में अमन और खुशहाली के लिए, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, अपने बच्चों, नौजवानों की खुशहाली और उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए हम सब मिलकर एक होकर डेवलपमेंट के रास्ते के ऊपर आगे बढ़ेंगे, अमन और खुशहाली के रास्ते के ऊपर बढ़ेंगे। हम हृदय से हपर मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख तो भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडरन अमे फैसलु खैर मकदम करान वोनमुत यह तारीखी फैसलु तो यम जम्मू कश्मीर तो लद्दाख कन लूकन सठी राहत वाते। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है धारा 370 हटाने को लेके, देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण बातें इसमें कहे कि जम्मू कश्मीर भारत के अंदर कोई सॉवरेनिटी उसके पास नहीं है और जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो है भारत के संविधान उस पर प्रिवेल करते हैं, सुपरसेट करते हैं। उसी तरह जो 5 अगस्त 2019 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लोकसभा के या राज्यसभा के दोनों सदन में जो बिल पास करके जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटाया, वो बिल्कुल भारत के संविधान के अनुसार ही कहा और कॉन्स्टिट्यूशनल इसको वैलिड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया। इससे माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो है उनके प्रति और भी विश्वास जो है और स्ट्रांग होते हैं, कॉन्फिडेंस जताते हैं, क्योंकि हम वाकई चाहते थे शुरू से कि भारत का अभिन्न अंग बने। 370 ने जो है भारत के अभिन्न अंग ठीक से होने नहीं दिया। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी एक लाइन वही मैं पढ़ रहा था जजमेंट में कि धारा 370 को हटाने से जम्मू कश्मीर भारत के साथ और भी मजबूत तरीके से जो है स्ट्रांग इसका इंटीग्रेटेड हो गया है। और मैं प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहूंगा। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ट्वीट आया, उन्होंने एक बार फिर से इंश्योर किया कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, लद्दाख के लोगों के साथ, खासकर जो 370 आर्टिकल के वजह से कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो या भारत के अलग अलग स्कीम हो या वहां के लोगों को जो हक हुकूक मिलने के जो दिक्कत आते थी मिलने से, वो सारा 370 हटाने के बाद लोगों को मिलने लगा है। और भी इंश्योर किया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ जो है मोदी जी के सरकार कंटिन्यू इसी तरह के वेलफेयर काम करते रहेंगे। मैं आज के इस मौके पे माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं और विशेष रूप से पूरे लद्दाख वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और लद्दाख के साथ साथ जम्मू कश्मीर वालों को भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि अभी तक मोदी जी के डिसीजन के साथ इस भारतीय जनता पार्टी हिंद सीनियर लीडर तो कश्मीर इंचार्ज तरुण चुगन अमे हवाले कत करान वोनमुत अदालत के फैसले सत वात तिमन लूकन सठी राहत यम जन पतमो कय्या वरियो पे मुश्किलन मज हेन आमद। कश्मीरियत की जीत है, ये जीत है उन विस्थापित कश्मीरी पंडितों की, ये जीत है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के आंदोलन की जीत है, ये भारत की आस्था की जीत है, ये भारत के उस मंत्र की, ये कश्मीर हो जहां हो गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, ये उसकी जीत है। और प्रधानमंत्री जी ने जो एक फैसला किया था, जो देश के सदन के अंदर गृह मंत्री अमित शाह जी ने जब ये विषय रखा था और 35 और 370 को तोड़ा था, आज उसी तरह की राहत फिर दोबारा मिली है।
बहुत ही ऐतिहासिक गौरवमयी फैसला है। और ये 370 के टूटने के बाद जिस तरह वहां आतंकवाद कम हुआ था, आतंकवादियों की आयु कम हुई थी, आतंकवाद की घटनाएं कम हुई थी और सुरक्षा कर्मियों का मनोबल बढ़ा था, बाजों का मनोबल गिरा था, उनकी संख्या में गिरावट आई थी। आज सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर मोहर लगाकर बहुत बड़ा फैसला किया है और आज देश के अंदर जम्मू कश्मीर 370 के जाने के बाद विश्व के अंदर सबसे ज्यादा पर्यटक क्षेत्र आने वाला क्षेत्र बना है। कारमुल त्रालस मज आज विकसित भारत संकल्प यात्रा हवाले प्रोग्राम साज करना आमुत यथ मज इंतजामी के जिम्मेदारों, अवामी नुमाइंदों तो मुकामी लूकों अलाव तलब इल्मो शिरकत कर। आत मौके पे तकरीब मज मौजूद लूकन मरकजी सरकार चंद स्कीमन हवाले जान दिन आय तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत इन प्रोग्रामन हिंद साज कर मकसद जे आम लूकन ये स्कीमन हवाले जान दिन युद्ध जन लूक आसानी सान इन स्कीमन हुंद फायदे तुलित हेकन। यल जन आत मौके पे फनकारों तो तलब इल्मो तरफ रंगारंग प्रोग्राम पेश करना आय। और ये डिपार्टमेंट जो है ये जो विकसित भारत संकल्प है, ये जो एक प्रोग्राम है, ये नेशनल लेवल पे शुरू किया गया था और इसका जो अहम मकसद है वो जो लोगों के और गवर्नमेंट के बीच में जो दूरियां हैं उनको ख़त्म करना है और जो गवर्नमेंट के डिफरेंट प्रोग्राम्स है, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है, उनकी जो भी बेनिफिट्स है वो लोगों तक पहुंचाए जा सके ताकि लोग बहुत अच्छे से उन प्रोग्रामों से मुस्तफ़ीद हो जाए। और इसमें जो गैप रहती थी लोगों में और मुख्तलिफ महकमा जात में, उस गैप को ख़त्म करने के लिए हुकूमत ने ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम बनाया ताकि जो गरीब तबका है और जो मेजॉरिटी ऑफ नेशन है वो इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो जाए और जो हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमें हैं उनसे हायर सेकेंडरी स्कूल हाल पुलवामिस मज आज महकमे तलीम तरफ प्रोग्राम साज करना आमुत यथ मज डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर अलाव दोमो जिम्मेदारों तो तलब इल्मो शिरकत कर। अत मौके पे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर हायर सेकेंडरी मज कयान प्रोजेक्टन इफ्तिताह कोर तत तलब इल्मो तरफ रंगारंग प्रोग्राम पेश करना आमुत। जन ए मर्द मुसलमान कुरान में हो had to inaugurate this virtual lab और यहाँ लेबॉर्ट्री एक बनाई थी और बच्चों ने कुछ जो उनकी परफॉर्मेंसेस थी उनको देखना था। ये वर्चुअल लैब जो समग्र शिक्षा की मदद से हमने बनाया, हर जगह उन्होंने अलॉट की हुई है लेकिन डिस्ट्रिक्ट में ये पहली वर्चुअल लैब बनी है। दिस विल बी टोटली बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स और नया एक्सपोजर मिलेगा बच्चों को और वो जो उनकी एक्टिविटीज़ और दूसरे जो कारनामे उन्होंने किए हुए उनका शोकेस आज यहाँ हो रहा है। ट्यूशन नहीं देना है, हमने क्या करना है, अगर लर्निंग गैप कहीं पे रहेगी तो हमारे टीचर्स विल बी अवेलेबल फॉर इम्पोर्टिंग देम ऑनलाइन असिस्टेंस। अगर कहीं जो लर्निंग गैप किसी बच्चे को है, वी हैव प्रोवाइडेड द नंबर्स ऑफ आवर टीचर्स। तो नाजरीन, खबरनामा सैद बज सब्द तो बे मुलाकात फिलहाल दी इजाजत, खुदा सवाल।